अभी हम तकरीबन तकरीबन 2200 लोग हैं, अभी भी प्रमोट करते रहो। और हमारे होस्ट भाग गए पर यार, उनका नेट मुझे लगता गया। अब उनको इन कैसे करेंगे? हैं? आज मुझे ना ट्रांसलेट करना पड़े। हैं? आज मुझे ना ट्रांसलेट करनी पड़े ट्रेनिंग। हैं? कोई बात नहीं, कर देंगे, फिर कितनी बड़ी बात है। अब पहले दिनेश को ज्वाइन कराऊं। नहीं नहीं, है यार। मुझे लगा है ही नहीं आप। हैं? वो सर यही हो, कहीं नहीं जा रहा। ओके ओके ओके। मैं उनको ज्वाइन कराने की ट्राई कर रहा हूँ, अब तब तो कंटिन्यू करो। माइक ऑन कर दो। मैं एक को होस्ट बना देता हूँ। हाँ जी गाइस, मेरी आवाज आ रही है? सभी लोगों को एक बार फाइनल कंफर्मेशन दे दो। ओके, गुड 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 गुड। सभी लोग एक्साइटेड हो? कौन कौन वैसे लोग एक्साइटेड है लर्न करने के लिए? क्योंकि आपके जो चेहरे हैं ना, वो बता रहे हैं कि आप कितने ओके एक्साइटेड हो। ओके, द स्पीकर इज कमिंग गाइस ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। आई जस्ट एड द स्पॉटलाइट, द ग्रेटेस्ट एफबीओ। हाय, वेलकम। या यू स्पीक राइट नाउ। यस All यस यस, right, all वेलकम। right, all right, all right. I am here now. You know what I was doing? I couldn't open it was large. So I was saving the pictures one. So I'll be using my phone because ओके I thought you'd be able to open it on your side. But keep on checking. If you find it, and then we'll continue on your side of where I am. but it is too large, it is not opening right now. Yeah, I asked my PA The to file. change it. Yes, But no so worries. far we can Welcome in continue. India. Yes. Yes. I am 3,000 definitely in people. India. Yeah, 3,000 people right now to listening you, and they all are very excited right now. Yes, I can see. They've been 1K before the time. Wow, 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 wow. You guys deserve a round of applause. Thank you so much. I am going to be starting right now. Is the translator ready? Okay, या Dinesh is translating you right now. All right. Yeah, okay. Is he typing or is going to speak after I speak? आई एम गोइंग टू स्पीक आफ्टर यू स्पीक। All right, all right. No problem. So thank you so much, guys, for having me here. Thank you so much, Jasper, for trusting me with your huge team. How is everyone doing? It's 12 midday in South Africa, and I know it's around to 4 in India. Connecting from South Africa. Hello, hi, everyone. पहले तो आप सब लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया इतने हजार लोगों के सामने, जसप्रीत सर का भी। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। तो मैं साउथ अफ्रीका से हूँ, आप सब लोगों के साथ आज कनेक्ट होने वाली हूँ। हेलो एवरीवन। Yes. So my name is actually Kuchi Kanyane. My surname is Kanyane, but no one knows my surname because I'm well known as Kuchi the Great. मेरा एक्चुअली जो सरनेम है वो खुतीजा कैनियाने है, लेकिन मेरे को उस नाम से कोई नहीं जानता क्योंकि मेरे को खुतीज ग्रेड बोलते हैं। Yes. So I am now 9 years in forever. मुझे अब ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं फॉर एवर लिविंग में। So I am a married single mother of four. I am a diamond manager in the business for now. I'm short with I think 7 managers to get to double diamond is my goal for next year. I'm a Sapphire Eagle manager, level up qualifier, global leadership team. I'm part of the GLT. I heard Jasper when he was introducing me. He said I did 10,000 last year. Actually, last year it was the first time I do 7.5, and then this year I'm already on 12.5. I'm forever to drive qualifier, chairman's bonus qualifier,
In Southern Africa, I am sitting at number 3, top team builder. And then last year, in terms of productivity in Africa, I was number 1. And I was also number 3 in terms of development globally. And last year, 2024, in the GLT stats, I was number 21 globally. And currently, I've been on top 10 in the GLT top 10 globally since the beginning of the year. And I'm a 7-figure earner. राइट नाउ मैं फोर बच्चों की सिंगल मदर हूँ और मैं अभी मिलियनर हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही हूँ, डायमंड मैनेजर हूँ। मतलब मैम अभी डायमंड मैनेजर है और डबल डायमंड मैनेजर बनने के लिए सिर्फ 7 मैनेजर्स उनके बचे हैं, तो अगले साल का उनका टारगेट है डबल डायमंड मैनेजर क्वालिफाई करना। अभी वो साउथ अफ्रीका में टॉप 3 पोजीशन होल्ड करता है और डेवलपमेंट में भी टॉप 1 पोजीशन होल्ड करते हैं। लास्ट ईयर इवन वो ग्लोबल लीडरशिप टीम में 21th नंबर पे है लास्ट ईयर का जो चार्ट है। और लास्ट ईयर में हमने 7.5 किया था और 7.5 के किया था, इस साल वो 12.5 के ऑलरेडी ऑन द सेल्स है। हाँ जी मैम। Thank you so much. So I've joined the business on the 24th of June in 2016. I joined the business in 2016 in June. It was in winter here in South Africa. So that is my picture right there. And if you know me right now, you can see you are seeing 2 different people. So can you see when you have money and when you don't have money, you change physically without doing any surgery. So that is my picture at my first business presentation in 2016. मैंने जून 2016 में इस बिजनेस को शुरू किया था। आप जिस प्रेजेंटेशन में मेरा अगर फोटो अच्छे से देख रहे हो तो ये तब का फोटो है, विंटर्स का, जब मैंने एक्चुअल में बिजनेस शुरू किया था। और तब का फोटो और आज का जो फोटो है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो। और ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि जब आप पैसे कमाते हो ना, आप विदाउट सर्जरी ग्रो करना शुरू कर जाते हो। Forever Living found me. I was full-time employed. I'm a compliance officer by profession. So I was working for one of the biggest companies here in South Africa. I've got all those qualifications that you see there. So when Forever Living found me, I was full-time employed. जब फॉरएवर लिविंग मेरे को मिली तब मैं एम्प्लॉय थी। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है साउथ अफ्रीका में, वहां पे कॉम्प्लायंस ऑफिसर थी, जिसके लिए मैंने बहुत सारी डिग्री भी ली थी। तो आप देख सकते हो कि एज अ कॉम्प्लायंस ऑफिसर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था 2016 में। So this is the lady that introduced me to the Forever Living business. She met me on Facebook in 2016 January. So she invited me to the Zoom meeting in January 2016, but I could not join because I was busy, or I thought I was busy. And then she also told me about Forever in February 2016, but I was not interested to join Forever Living business. She told me about Forever again in March 2016. She invited me to a live success day, but I did not attend. I was not interested in joining the business. In April 2016, the global rally came here in South Africa. It was in Sandton. So this lady, she basically bought me a ticket to attend the success day, but I turned her down again. I did not attend. ये वो मैम है, आप फोटो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जिन्होंने मुझे फॉरएवर लिविंग के लिए पहले इंट्रोड्यूस किया 2016 जनवरी में। बट उस टाइम पे जब मैम ने मुझे जूम मीटिंग के लिए बुलाया, मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं अपने लाइफ के दूसरे कामों में बिजी हूँ। 2000 फरवरी में, मतलब फेब में 2016 में उन्होंने मुझे वापस अप्रोच किया, मैंने वापस उनको मना कर दिया। मार्च में उन्होंने मेरे लिए एक लाइव सक्सेस डे का टिकट निकाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके मतलब ये मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैंने वो सक्सेस डे भी अटेंड नहीं किया। उसके बाद 2016 में अप्रैल में ग्लोबल रैली साउथ अफ्रीका में थी, तो उस टाइम पे उन्होंने ग्लोबल रैली का टिकट मेरे लिए खरीदा, लेकिन मैंने फिर भी उनको उस टाइम पे भी वापस मना कर दिया था। Guys, imagine today I am part of the GLTs. I know what is Forever, but I missed Global Rally. That was in my country because I thought Forever Living was not for me. So we are having over 1,000 people here. Some of you have just recently joined the business, and I am sure you are scared. You are asking yourself, is it going to work for me? Is this business for me? Just remember, in 2016, I was in your shoes.
I did not know what is Forever Living, and I was not also interested. Then, until one day in June, I decided to attend one meeting. And in that one meeting, the lady that was presenting, she was sharing with us how much Forever Living has changed her life. And I was motivated, and I said, let me give it a try. So this lady today, I call her my sponsor. I call her my destiny helper. जब मैंने पहली बार, आप खुद सोच सकते हो, मैंने 4 मंथ में मैंने जो अपलाइन है जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया, मैंने उनको लेट डाउन किया था, मैंने उनको मना किया था कि मुझे बिजनेस करना ही नहीं है क्योंकि मेरे लिए है ही नहीं। और आप सोच कर देखो कि राइट नाउ मैं फॉरएवर लिविंग के जो प्रेस्टिजियस लेवल्स होते हैं, जीएलटी है, डायमंड मैनेजर है, उस लेवल पे हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं, जो न्यू बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। मैम का उनके लिए एक सबसे बड़ा मैसेज है कि इनिशियल लेवल पे जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था, मुझे भी ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए नहीं है, ये इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर पाऊंगी, ये उसमें मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब आप काम करोगे तो आप इजीली इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी लोगों की स्टोरी सुनकर ही एक इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन लिया था, जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर लिविंग को सिर्फ एक ट्राई दिया था, और उस ट्राई की वजह से आज मैं ग्रो कर रही हूँ। और ये जो मैम है, जो मैम के अपलाइन है, उनको आज ये स्पॉन्सर भी मानते हैं और उनकी डेस्टिनी भी कहते हैं। Thank you so much. So, this lady, after I've joined the business, she told me about Forever in January, February, March, April, May, June. I decide to now buy my first stock. And in July, she quit Forever. So the lady that you see here on the screen, she brought me in the business. And when I was still excited about Forever, in July, she said she's not interested to do Forever Living anymore. So I was left alone. But ladies and gentlemen, today, with or without an upliner and a sponsor, I am a diamond manager. If you want to be successful in Forever, just know that when you join for yourself, because I am the testimony that with or without an upliner, you can still be successful. और जो आप देख रहे हो कि जो मैम है, जिनको मैं मेरी स्पॉन्सर या फिर मेरी डेस्टिनी कहती हूँ, जब मैंने जून 2016 में इस बिजनेस को शुरू किया, जुलाई 2016 में अगले ही महीने मैम ने, जो उनकी अपलाइन है, जब उन्होंने उनको कॉल किया, वो कहते कि अभी मैंने फॉरएवर छोड़ दिया है, अब मैं फॉरएवर लिविंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब जिस महीने मैम ने ज्वाइन किया, उसके अगले महीने ही मैम की अपलाइन उनको छोड़ के चली गई। और आप देख सकते हो कि आज उनके अपलाइन के बिना वो फॉरएवर लिविंग में डायमंड मैनेजर है, जीएलटी है। तो ये एक टेस्टिमनी है आप लोगों के लिए कि आपके अपलाइन या फिर है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि बिजनेस आप लोग अपने लिए शुरू करते हो, तो अगर आप अपने लिए मेहनत करोगे तो आपका करियर 1001% बिल्ड होगा। Yes. So if you are in this group, some of you are not directly under Jasper, but you are under his leadership. So if you are still having Jasper there, you have something to hold on to. I had no upliner, but I never made it an excuse. And ladies and gentlemen, let me tell you, 9 years later, when this lady look at me, she cry. She says, only if I never left Forever. So whatever that you do in your journey in Forever, never quit the Forever Living business. Rexmond says, no one fails in Forever, but people quit on the way because they are comparing themselves with others. So don't make a mistake by living Forever, because one day you are going to look back and regret. अब आप खुद सोचो कि जो मेरे अपलाइन है, जिन्होंने मुझे बिजनेस स्पॉन्सर करवाया, आज उनके लिए कितना बड़ा रिग्रेट होगा जब वो मेरे को देखती होगी 9 साल के बाद मैं एक डायमंड मैनेजर हूं और फॉरएवर लिविंग में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रही हूँ। तो मैम का मैसेज यही है आप लोगों को कि आपके साथ कोई है या नहीं है, लेकिन आप सब लोग बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि मेरे पास कोई अपलाइन नहीं था, लेकिन आप सब लोगों की लीडरशिप में ऊपर जसप्रीत सर आते हैं। आप भले ही जसप्रीत सर के डायरेक्ट में नहीं हो, लेकिन आप जसप्रीत सर के लीडरशिप टीम का पार्ट हो। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ना कोई तो इंसान है जो आपको गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, पुश कर रहा है। और रेक्स सर यही कहते हैं, इस बिजनेस में कोई भी इंसान कभी भी फेल नहीं होता जब तक वो छोड़ ना दे। इसीलिए आज अगर आपने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आप कल को जाकर रिग्रेट करोगे। इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना। So, what is your why? You are going to hear this question from the day you sign up, when you move to supervisor, when you are an assistant manager, when you are a manager and above.
we will still ask you this question: what is your why? If you write down what is your why on your diary, on your board, everywhere where you see it, even when challenges comes in the business, you will never quit the business. You will never give up because you know what is your why. Ask yourself today, if anything happens to you, if you die today, who is going to cry the most? What are you doing right now with the time that you have? So ask yourself, what is your why? When I joined the business, I was going through divorce. I'm a single mother of 4 right now. My mom is not married as well. So when I joined the business, my why was my kids. I said to myself, if I used to struggle with my ex-husband, how are things going to happen now when I am alone? That is why I joined the business. It was because of my kids. आप सब लोगों को सबसे पहला जो लेसन है इस मीटिंग में जो मैम दे रहे हैं कि आपको अपनी वाई को समझना पड़ेगा कि आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया है, आपका इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मोटिवेशन क्या है। क्योंकि देखो, जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो ना, आपको बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशन आगे पीछे होगी, लेकिन जो आपकी वाई है ना, वो कभी भी आपको गिव अप करके नहीं देंगी। मैम ने उनका एग्जाम्पल दिया, जब उन्होंने पहली बार बिजनेस को देखा था तो वो अपने डिवोर्स के प्रोसीजर्स के थ्रू जा रही थी, तो वो मेंटली ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन उनका जो मोटिवेशन था ना, उनकी जो वाई थी ना, वो उनके किड्स थे, क्योंकि उनकी मदर भी मैरिड नहीं थी उस टाइम पे, वो भी सिंगल मदर थी, तो बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में चल रही थी। तो उनका जो मेन रीजन था इस बिजनेस को शुरू करने का और इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, वो उनका रीजन था, वो है उनके किड्स। मतलब मैम की वाई है किड्स, तो आपकी वाई क्या है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। So I am now a diamond manager. So for those that are asking themselves, she says she's a single mother, why is she wearing a ring? So this ring, I got it when I got to diamond manager. When you get to diamond manager in Forever, they make you a ring with 3 big diamonds. So now, when the CEO Craig gave me this ring, guys, it was in last year in Dominican Republic. I cried so hard, and people thought, okay, maybe she's just emotional. Do you know the main reason why I cried is because when I was still married and I will have challenges or fights with my ex-husband, the first thing that he's going to ask from me, it was his ring that he bought me. So after our divorce, I gave him his ring completely. But now look at Forever Living. So Forever Living restored my pride and my confidence, because today this ring, I know no one can come and take it away from me. So that is why I'm going to take you back to what is your why. Why do you want to make money? Why do you want to be successful in Forever Living? That question, it is very important, because our business, it is not just smooth. It has challenges. But if you know why you are doing the business, nothing is going to shake you. तो मैम ये कह रही कि आप मेरे हाथ में एक रिंग देख रहे होंगे, राइट, कि आप कह रहे हो कि मैम तो मैरिड नहीं है अभी, उनका डिवोर्स हो चुका है, तो उनके हाथ में ये रिंग कौन सी है। तो आप अगर जिस टाइम पे फॉरएवर लिविंग में डायमंड मैनेजर बनते हो, तो फॉरएवर लिविंग आपको एक रिंग गिफ्ट करता है जिसमें 3 ओरिजिनल डायमंड्स होते हैं, और वो मैम को लास्ट ईयर फिनिक्स, मतलब जब लेवल अप का उनका ट्रिप था वहां पे मिली थी, डोमिनिक रिपब्लिक में। तो मैम जब ग्रेग सर ने या फिर जो हमारे सीईओ है उन्होंने जब मैम को वो रिंग दी, तो मैम बहुत ज्यादा इमोशनल थी। तो लोगों को लगता था कि ये जस्ट एक इमोशनल मोमेंट कि उन्होंने अचीवमेंट किया है, बट एक्चुअल जो रीजन था वो ये था कि जब वो अपनी पास्ट मैरिड लाइफ में थी, जब उनकी शादी हुई थी, तो जब भी डिवोर्स की बात आती थी, उनका जो एक्स हस्बैंड है वो हमेशा उनके हाथ में जो रिंग है ना, वो मांगता था कि अगर डिवोर्स करना है तो ये रिंग दे दे। लेकिन आज आप फॉरएवर लिविंग की पावर देख लो कि मैम को वो रिंग मिली है जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, जिसको कोई भी निकाल नहीं सकता। तो मैम ये कहते हैं कि इस रिंग ने मुझे मेरी लाइफ को वापस रिप्लेस करने के लिए, बिल्ड करने के लिए एक मोटिवेशन दी है। So, my first year in Forever, after now, I bought my first stock. So, maybe some of you are trying to prospect people here and they say they don't have money. It is not everyone that has money. So, if you tell those people their stories like myself, they will definitely give it a try. So, I wanted to join Forever Living. Now I know my why. I want to do the Forever Living business, and I don't have money to buy my first combo. So where did I get money to buy my first combo? I sold my one and only TV, guys.
my one and only TV, and I went to buy my first stock on the 24th of June in 2016. मैम, जब आप लोगों को मालूम है कि जब लोग बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत सारे लोगों का एक ही बहाना होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर जर्नी पैक बाय करने के लिए। तो उस टाइम पे आप लोग सोच रहे होंगे मैंने बिजनेस को कैसे शुरू किया। तो मैम का जो बिजनेस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनके घर में एक टीवी था। तो मैम ने अपना जो पहला स्टॉक है, जैसे हम लोग जर्नी पैक से बिजनेस शुरू करते हैं, पहला प्रोडक्ट स्टॉक बाय करने के लिए अपने घर का जो टीवी था वो बेच दिया था। और उसके बाद मैम ने 24 जून 2016 को अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। So every time when I look at the people that join Forever and they are not doing 4CCs, they are not willing to work hard, I always cry because I know how I struggled to get money to buy my first stock. And when I look at my achievements today, I know that the day I bought my first stock, God was very happy because He knew I am going to be a diamond manager. But that time, I was an assistant supervisor. I didn't know that one day I am going to be a diamond manager. तो आप खुद सोचो, जिस दिन मैंने पहली बार अपना जो स्टॉक बाय किया, राइट, वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। क्योंकि जब मैं लोगों को देखता हूँ वो अपने जर्नी पैक के लिए स्ट्रगल करते हैं, मैं हमेशा इमोशनल भी होती हूँ। क्योंकि वो दिन था जब मैंने अपना टीवी सेल किया था, और जब उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ था और भगवान को बहुत प्राउड था कि मैंने वो डिसीजन लिया। So I am going to speak to assistant supervisors right now. Maybe you just recently joined the business. The challenges are going to be there. One of my first challenge is when the lady that brought me to the business left the business. I was left alone in Forever. I didn't know how the product works because I am not even a nurse. I've never sold anything in my entire life. I didn't have a car. I didn't even have a nice phone. All I had was my box full of the products, and I was a brand new assistant supervisor. But the day I got my box, I said to myself, if other people did it, I am also going to do it. So you are an assistant supervisor right now. Don't look at your challenges. Don't look at what you are going to face. Don't look at the people that failed in Forever. Don't look at the people that quit Forever. Look at the people that are successful and say, if Jasper did it, I am going to do it. तो इनिशियल लेवल पे अब जो मैसेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उन सब लोगों के लिए है जो इस बिजनेस में ऑलरेडी अपना लेवल अप कर चुके हैं, अपने आगे के स्टेप्स को कंप्लीट कर रहे हैं। आप जब इनिशियल लेवल पे अपना लेवल अप करते हो ना, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और उसमें अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। जब मेरे लिए सबसे पहला जो प्रॉब्लम था, जब मैंने एएस लेवल क्वालिफाई किया था, लेवल अप किया था, वो था कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। क्योंकि मेरे जो अपलाइन है, जिन्होंने मुझे बिजनेस शुरू किया, उन्होंने गिव अप कर लिया था। तो मेरे पास कोई अच्छा फोन नहीं था, अच्छी सिस्टम नहीं थी, अच्छी गाड़ी नहीं थी, अच्छी चीजें नहीं थी। तो सीधी सी बात है, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो है बॉक्स फुल ऑफ प्रोडक्ट। तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जब मैं देखती तो मुझे ऐसा लगता था कभी कभार मैं कैसे करूंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि यार बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर जसप्रीत बरार कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने अपने चैलेंजेस को इग्नोर किया और आगे देखा कि कौन ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल है, जो मुझे मदद कर सकते हैं, जो मुझे आगे लेके जा सकते हैं। तो चैलेंजेस को इग्नोर करो, उनके ऊपर फोकस मत करो, ये देखो कि आप कहां तक पहुंच सकते हो। So after I've joined, now I've bought my first box, I had to learn now social media. Remember, I don't have an upliner. I was on my own, but I managed in July to become a new supervisor. When I became a new supervisor, I was so much excited. I got paid less money in Forever, but it makes me happy because I was just joining the business to sell the products. Now I've recruited 3 people and Forever Living is giving me recruitment bonus. I was so happy. When I was a supervisor, I saw that money coming in. I was having lots of customers. I went to work and I went to resign. So it has been 9 full years now without my job. But I am not encouraging you to resign at your work if you don't want to work hard. First, work very, very hard, and later you can resign. I don't know why I resigned when I was a supervisor, but
I did it, and here I am today, a diamond manager. और आप लोगों को मालूम है, जैसे मेरे साथ मेरी अप्लाई नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और सिर्फ जुलाई 2016 में मैं पहली बार सुपरवाइजर बनी, क्योंकि मैंने 3-4 लोगों को रिक्रूट किया था और बहुत सारे कस्टमर्स को प्लान आउट किया था। तो मैं 1 महीने में अपना सुपरवाइजर लेवल अप क्वालिफाई कर चुकी थी। सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद मैंने पैसे अपनी जॉब से ज्यादा नहीं कमाए, लेकिन थोड़े तो कमाए, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि अगर इतना सा काम करके मैं इतना पैसा बना सकती हूँ तो मैं और भी आगे बढ़ सकती हूँ। इसीलिए जुलाई 2016 के एंड में मैं गई अपनी जॉब पे, बट काम करने के लिए नहीं, अपने काम को रिजाइन करने के लिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपने काम को रिजाइन कर दो, बट पहले आप अपनी स्किल्स को, अपनी मेहनत को इतना बढ़ा लो कि आप अपनी जॉब को इजीली लेफ्ट कर सकते हो और आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो इसीलिए उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब को रिजाइन दिया और आज मैं, आप देख सकते हो, एक डायमंड मैनेजर करके आपके सामने बैठे हूँ। Then in August 2016, I became an assistant manager. In September, I was a brand new manager. Just when I was 4 months in Forever, I was already a brand new manager. So the first success day in Forever, I went on stage to get my supervisor pin, to get my assistant manager belt and my manager belt. And ladies and gentlemen, what I was doing, I did not know what I was doing. Honestly, my first 4 months, I was just selling the products. I was just trying to figure out how social media works. I was talking to many people, and boom, I became a manager. I did my 4 CCs on the first month when I joined Forever. I didn't know what is 4 CCs, but I remember the lady, before she left the business, she said to me, Kuchi, if you want to be successful in Forever, do your 4 case credits and never miss it. और उसके बाद जुलाई में सुपरवाइजर बनने के बाद मैं एग्जैक्टली 2016 में असिस्टेंट मैनेजर बनी। उसके बाद सितंबर 2016 में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। तो जब मैं पहली बार सक्सेस डे में गई ना, तो उस टाइम पे मैंने अपने सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के पिन्स को क्वालिफाई कर लिया था। और मैंने एक चीज देखी थी कि मुझे कुछ एक्चुअल में मालूम नहीं था। मैं सिर्फ पागलों की तरह प्रोडक्ट सेल कर रही थी, ठीक है, मैं सिर्फ पागलों की तरह बहुत सारी चीजें फिगर आउट कर रही थी। बट एक चीज थी जो मेरे अपलाइन ने मुझे बताई थी, और मैं उस चीज को दिमाग में डालकर बैठी थी कि अगर आपको ग्रो करना है ना इस बिजनेस में, तो आपको अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन जो 4 CC होती है 1+3, उसको करना बहुत जरूरी है। तो मैम ने उसको पहले दिन से बिल्ड किया, जिसकी वजह से वो 4-5 मंथ में अपना मैनेजर क्वालिफाई कर चुकी थी। So when you are in Forever, especially the new members, be teachable. If you want to be successful in Forever, be teachable. So that 4 CCs, I didn't know what it meant. And they told me that you've got now two CCs, go and buy another 2 CCs stock. And I did that, and without not understanding. The minute you try to understand in the beginning, that's most of the people, they give up there because they are trying to understand. But 4 CCs, guys, if you are here in November, you did not do your 4 CCs, you need to start now to do that 4 CCs. Don't wait until you understand it. Don't wait for next year, January. I did 4 CCs from the first month when I joined the business. And let me tell you, that was the last time I did my 4 CCs. From July 2016 and today, I do nothing less than 20 CCs personal each and every month. तो आप लोगों को अगर ग्रो करना है इस बिजनेस में, तो आई डोंट नो आपने नवंबर में अपने एक्टिव क्वालिफिकेशन किए नहीं किए, लेकिन आप जिस भी लेवल पे हो, कोशिश करो कि आप अपनी 4 CC हर मंथ क्वालिफाई करो, क्योंकि वो एक बिजनेस का बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है। और अगर आप सब लोग नए असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर आपने अभी बिजनेस शुरू किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है जो है कि बी टीचेबल, मतलब अपनी सीखने की क्षमता बढ़ाओ। जितनी चीजें आप इस बिजनेस में सीखोगे, उतनी ही ज्यादा आप अपने पेरोल्स को बढ़ा सकते हो। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, मैंने चीजें सीखी तभी मैंने 4 CC को सीरियसली लिया और आज मैं ग्रो कर रही हूँ। और आज मैं डायमंड मैनेजर हूँ। मैं हर महीने ऑलमोस्ट 20 CC पर्सनल करती हूँ अपने कस्टमर्स, अपने बिजनेस के लिए। आज तक उन्होंने कभी भी अपना 4 CC क्वालिफिकेशन मिस नहीं किया। So this picture here, it was the day they brought my first stock at work.
it was the day they brought my first stock at work. Like on the screen, I said I didn't have money to join, just like most of the people, but I sold my one and only TV. And I believed you need to, if you want to be successful in forever, you need to believe in the products and use the products. Be your number one customer. And also believe in the marketing plan. Believe in your leaders. Believe in our executives. And I'm telling you, work very hard. I took rejections. I had to make it work. आप ये फोटो देख सकते हो, ये तब की फोटो जब मैंने पहली बार अपना स्टॉक बाय किया था। जैसे हम जर्नी पैक से बिजनेस शुरू करते हैं, पहली बार मैंने प्रोडक्ट्स बाय किए थे। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा लोगों के पास भी नहीं होते, तो मैंने अपना एक ही टीवी था हमारे घर में, वो बेच दिया था। तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत टफ मोमेंट थी, लेकिन मैंने क्यों शुरू किया मालूम है? क्योंकि मुझे भरोसा था अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। और अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं लेवल अप करने के बाद, उसको यूज करो, उसको अलमारी में मत रखो। प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, अपने खुद के पहले बिजनेस पार्टनर बनो, खुद के कस्टमर बनो, तभी लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। आपने अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करना है, एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर भरोसा करना है, कंपनी सिस्टम्स के ऊपर भरोसा करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि जब आप मेहनत करोगे, आई नो आपको रिजेक्शंस आएंगे, लोग मना करेंगे, लेकिन उसको फेस करके आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी है ना, वो एक्चुअल में आपके हार्डवर्क के अंदर छुपी हुई है। So now I want us to look at the 5 key elements of success. 5 key elements of success. Translate तो मैं करो अब भाई। आपको तो मैं आपको अभी 5 की एलिमेंट्स बताने वाले हूँ सक्सेस के। The first one that I want us to look at is success requires work. I want on the comment section to all type work. तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स में से, वो है सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे इस मीटिंग में, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग चैट्स में वर्क टाइप करो। So if you are not going to work in forever, unfortunately, you will never be successful in forever. तो अगर आप इस बिजनेस में मेहनत नहीं करोगे, तो ये रियल फैक्ट है कि आप इस बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। So this is my beginning, ladies and gentlemen. So if you just understand that forever living as well. गाइस मेरा खाई दे हाल तो वो लक्ष्य वो नहीं खानो जो खाई दियो ना तो खा दे दूध वाली खाई दी
और मोटा है It depending on your own efforts, not your upliner's effort. Let us not be the forever living business owners that want our upliners to do everything for us. You are not gonna grow in the business. तो ये तब की फोटो है जब मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया था, जब मैं प्रोडक्ट्स के सैंपल्स लोगों को दिखा रही थी। तो आप सब लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो तो पहले ये समझो कि ये आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है। हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन है, मेरे लिए सारे काम करके देगा, सब कुछ रेडीमेड देगा। तो ऐसा नहीं होगा। जो बिजनेस है वो आपका है, तो मेहनत है जो ग्रो करने के लिए चाहिए वो आपको ही करनी पड़ेगी। आपको एक इंडिपेंडेंट नेचर बिल्ड करना पड़ेगा। मैम यू आर म्यूट। सर अनम्यूट करना मैम को। Okay. Okay. Yeah, If you are looking at these pictures, they actually make me so emotional. This was the beginning. So the first one there with the red track suit, I went to train stations. I don't know if you have train stations in India, but we do have here in South Africa. If you can see there, I'm holding 2 bottles of alu. I was looking for customers. We did not have TikTok in 2016. I did not understand Facebook, how it works, guys, when I joined Forever. So if you are here, you already know how social media works. What will be your excuse not to be successful? Look at me there. I went to train stations. The other picture there down, you can see it's me standing up with a grandfather there. I went to where pensioners get their money every month, because here in South Africa, every month the government gives the pensioners money. So I went there and I was opening my alu bottles, guys, so that they can taste the alu. That was my marketing. And then on the other picture there, wherever I see a group of people, I will be there selling the products. This is my beginning. तो आप जो फोटोज देख रहे हो इनिशियल में, आप पहला जो फोटो देखोगे वो ट्रेन स्टेशन का फोटो है कि मैं साउथ अफ्रीका के कुछ ट्रेन स्टेशन होते हैं, वहां पे जो रेड सूट वाला फोटो है, वहां पे मैं 2 एलोवेरा के बोतल्स लेके जाती थी और कस्टमर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करती थी बहुत, क्योंकि तब 2016 में हमारे यहाँ कोई टिकटॉक नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं चल रहा था, कोई चीजें बहुत सारी चल नहीं रही थी जो हमें इजी कस्टमर्स और इजी बिजनेस बना कर दे। बट आज आप लोगों के पास अच्छे से देखोगे तो सोशल मीडिया है, लीड्स की कमी नहीं है, सिस्टम्स है, सारी चीजें। तो आपके एक्सक्यूजेस क्या है? अगर मैं इनिशियल लेवल पे ट्रेन स्टेशन पे जाकर प्रोडक्ट सेल कर सकती थी तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो नीचे वाली फोटो ने मैम दिखाई उसमें वो अपने मतलब जो ग्रैंड लोग होते हैं, ठीक है, उनको पेंशन मिलती है तो उनको एलोवेरा की बोतल सैंपल्स करवाते थे, टेस्ट करवाते थे, तो जिसकी वजह से उनके कस्टमर बनते थे। तो वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। अगर कोई ग्रुप में लोग मिल जाए तो मैम वहां चले जाते थे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने। तो मेरे भाइयों, आप खुद देखो, अगर मैम उस लेवल पे मेहनत कर रहे थे तो आपके पास क्या बहाने हैं? So let us look at number 2 from the 5 elements of success. Number 2 is success loves speed. Can I see on the comment section speed? दूसरा जो एलिमेंट है सक्सेस का 5 एलिमेंट में से, वो है स्पीड, क्योंकि सक्सेस लव्स स्पीड। तो आप सब लोग चैट्स में स्पीड टाइप करो अगर आप लोगों को ये समझ आ रहा है। Just a second, ma'am. You are mute. I am giving you access. Yeah. Oh, sorry. Without me understanding the business, without me understanding the marketing plan, I had to make it happen. So if you are looking at the day you understand, you're not gonna work. So this here, when you look, I'm gonna just zoom in this picture. If you look at that diary there, it says 2016, and that was the 30th of August in 2016. So when you just join the business, guys, you are not going to post for likes. Don't worry, even if you do a video in TikTok and it doesn't have likes. You are posting because you are showing up, because you are working. So that was me in the beginning.
I will go and do one-on-ones at the restaurants with the people that I met at church, with the teachers that I met at the schools. So you need to understand that success loves speed. And if you're going to join in the business and you are stagnant, people are going to start to doubt forever. And I am sure you don't want to be the reason why people don't want to join forever. So work hard now so that people that follow you can see your life changing. तो इनिशियल लेवल पे जब आप बिजनेस को शुरू करते हो, राइट, तो सीधी सी बात है, आप लोग जो भी सोशल मीडिया पे समझ लो कंटेंट पुट कर रहे हो या फिर जो भी काम कर रहे हो, वो रिजल्ट्स के लिए, लाइक के लिए, कमेंट के लिए और व्यूज के लिए नहीं होते हैं। वो ये होता है कि आप लोग शो अप कर रहे हो। तो आप जो भी कर रहे हो इनिशियल लेवल पे, जहां पे भी काम कर रहे हो, अपने आप को शो करो। क्योंकि मैम ने जब इनिशियल लेवल पे बिजनेस शुरू किया तो उनके पास कोई फैंसी चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शो अप कर रही थी उन लोगों के साथ जो उनको चर्च में मिले थे, रेस्टोरेंट पे बैठकर जहां पे वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे 101। तो उन्होंने ये कहा है कि आपको ना स्पीड में काम करना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि क्या चल रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप स्पीड में काम नहीं करते, लोग आपके ऊपर डाउट करते हैं, लोग आपके साथ कभी भी बिजनेस शुरू नहीं करेंगे। तो मेक श्योर करना आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनो, एक ऐसा इंसान मत बनो जिसकी वजह से लोग भरोसा करेंगे कि फॉरएवर लिविंग नहीं चल रहा। तो स्पीड पकड़ोगे तो पूरी दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। So this was the beginning. So that lady that brought me in the business left the business. And on this picture here, you might not recognize me. That's me there with the spectacles. So that was me and the lady who brought the one who registered me. So this I was her second generation, this lady here. We're at the product center. तो ये जो फोटो है आप देख सकते हो, जो चश्मा पहनकर है वो मैं हूँ। और जो मेरी अपलाइन मुझे छोड़ के चली गई थी, उनके जो अपलाइन है जिन्होंने मुझे फिर हैंडल किया, बिजनेस में गाइड किया, जो मेरे सीनियर अपलाइंस थे उनके, ठीक है, ये वो है। और ये फोटो है वो प्रोडक्ट सेंटर की है, इनिशियल लेवल पे जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था। Do you know how difficult, guys, it was for me to know this lady? Remember, I only knew the one that brought me in the business. So when I wanted my first business launch, which is the one where she's wearing a white t-shirt, I didn't know how Forever Living operates. I went to the product center and I was looking for someone who can come and help me with the product launch. I was stopping everyone. When I hear that this person is a manager, I will ask them, please help me with the product launch. And they will say, where is your upliner? And I'll tell them the upliner left. And then they checked on the system. They saw that this one is the one that brought my upliner. So I was not like knowing anything about Forever Living, but still I wanted to do product launch. So if you are here, do your first product launch. It doesn't have to be live one. You can do your product launch via Zoom. You can do a product launch where you stay. It's absolutely up to you. But the product launch, I did it on my first month when I was in Forever Living. I didn't know how to present. So this lady came to assist me. तो आप खुद सोच सकते हो कि जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था मेरे लिए कितना टफ था। क्योंकि उस टाइम पे हमें ना प्रोडक्ट लॉन्च करने होते थे, बिजनेस को लोगों को दिखाने के लिए, बिजनेस को प्रमोट, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो ये जो अपलाइन आप देख रहे हो कि जब मैं पहली बार प्रोडक्ट लॉन्च करने गई, लोग तो आए थे थोड़े बहुत, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि प्रोडक्ट लॉन्च करते कैसे। तो हमारी जो कंपनी के सिस्टम है वहां पे जब मैं गई और उनको बोला कि जो मैनेजर्स थे वहां पे, जो हमारे स्टोर्स में, मतलब जो फॉरएवर लिविंग के आईडियोज होते हैं वहां पे जो मैनेजर्स थे, उनको मैम ने बोला कि प्लीज आप मुझे मदद कर सकते हो, मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं आता। तो उस मैनेजर ने बोला कि आपकी अपलाइन का है। तो जब उन्होंने बोला कि आपकी अपलाइन का है, मैम ने कहा तो वो तो चले गए, उन्होंने तो छोड़ दिया। तो उन्होंने सिस्टम को चेक किया और फिर मुझे मेरे सीनियर अपलाइन के साथ कनेक्ट किया कि ये आपके सीनियर अपलाइन है, तो आप इनकी भी हेल्प ले सकते हो। और उस टाइम पे जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च था, मुझे करना नहीं आता था, लेकिन मुझे हेल्प मिली जो हमारे आईडियो के सिस्टम से वहां से, और मैंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो अगर आप आज बिजनेस कर रहे हो, भले ही आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट है, चीजें समझ नहीं आ रही, चीजें बिल्ड नहीं हो रही, आपको अपने सिस्टम का यूज करके, भले वो जूम हो, लाइव 1-to-1 प्रेजेंटेशन हो, वो करना पड़ेगा अगर आप इन फ्यूचर ग्रो करना चाहते हो तो। And now, when I was still excited that now I found somebody who's going to assist me, after 2 weeks, she also left forever. That one that brought my upliner. When I was excited that at least I've got someone,
she left forever. I was now back to square one. When I called her that the people now want to know about the products, please come assist me here. When I have people saying you can come to our school, and I wanted her to help me, she said, Kuji, forever living is very difficult. I don't want to do forever living. I am no longer doing forever living. Guys, can you understand the challenges that I went through in the beginning? But today I am here presenting to you as the new EGLT. तो आप देख सकते हो जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किए तब जो सिस्टम वाले लोग हैं तो उन्होंने मुझे सीनियर अपलाइन के साथ मिलाया। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो कोई है मेरे पास जिसको जिसको मैं हेल्प मांग सकते हो, जो मुझे गाइड कर सकता है, जो मुझे बिजनेस के लिए चीजें गाइड करेगा। लेकिन जब मैंने 2 वीक के बाद उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो 2 वीक के बाद मेरी जो सीनियर अपलाइन थी, ठीक है, उन्होंने भी बिजनेस छोड़ दिया। अब खुद सोचो कि अब मेरे पास वापस कुछ नहीं रहा। सिर्फ 2 वीक के बाद जब मुझे वो सीनियर अपलाइन मैनेजर मिली, जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा फॉरएवर लिविंग मुझे नहीं करनी है, बहुत मुश्किल बिजनेस है, मेरे से नहीं होगा, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तो आप सोचो कि इनिशियल लेवल पे मेरे पास कितने प्रॉब्लम थे, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ब्रांड न्यू जीएलटी हूँ। So, guys, no matter who goes and who comes, never ever quit the forever living business. With me like that, not knowing what to do, not having anyone to coach and mentor me. But that year, in that 6 months of joining the business, I became one of the top achievers in Southern Africa. And on top 50, I was now number 44 in Southern Africa. No mentor, no coach. I was alone, learning everything as I go. But today I am saying to you that in the whole of Southern Africa, we only had 2 EGLTs. We only तो had आप देख सकते हो, two यू EGLTs. कैन कंटिन्यू। And I am one of those EGLTs. Today, from that number 44 in 2016, today I am number 3. I passed all the people that I found them doing forever living because of my commitment, because of my hard work. Forever living, whatever that you do, just know you are not doing it for your upliner. You are not doing it for your second upliner. You are not doing it for Jasper. You are doing it for your kids. You are doing it for your family. तो आप लोगों को ये देखो, जब मेरे जो सेकंड सीनियर अपलाइन थे उन्होंने भी बिजनेस छोड़ा तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी रुकी नहीं, क्योंकि एक चीज मैटर करती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। तो आपके पास कोई हो ना हो, पर आपको एक चीज समझनी है, आपको रुकना नहीं है। डेवलप नहीं करूंगी। 6 महीने के अंदर अंदर जब फॉरएवर लिविंग की टॉप 50 लोगों की लिस्ट आई, उसमें मेरा नंबर 44 था। विदाउट सपोर्ट, विदाउट गाइडेंस, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, कमिटमेंट की वजह से उन चीजों को बिल्ड कर पा रही थी। और 44 2017 की जो पोजीशन थी, वहां से आज मैं इलाइट जीएलटी हूँ। पूरे अफ्रीका में सिर्फ 2 ही है और उसमें से मैं एक हूँ, और टॉप पोजीशन 3rd होल्ड करती हूँ पूरे सेल में, पूरे साउथ अफ्रीका में। तो ये जो चीज है ना, ये सिर्फ मेरी कमिटमेंट, हार्डवर्क और जो मेरी मेहनत है ना खुद के लिए, उसकी वजह से है। क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन का, सीनियर अपलाइन का और किसी और का नहीं है, बिजनेस मेरा है। तो आपने अपने अपलाइन के लिए बिजनेस नहीं करना है, आपने अपने रीजन के लिए बिजनेस करना है, अपने बच्चों के लिए बिजनेस करना है, अपने सपनों के लिए बिजनेस करना है। So don't look. There are some of you here, you have joined under somebody. Maybe the person is just a supervisor or an assistant manager or a manager or just a senior manager or a sorry manager. Don't look down at those people, because in forever, if you work hard, you can even bypass your upliner. So there's no need for you to even have a jealous of each other, because your rewards in forever is depending on your own hard work. So don't look at who joins first, who joins last. In forever, you can come out now. Even the people that joined in November, in 2 years' time, you can be the first Centurion manager in India. So don't look at the circumstances, because the day I was announced as number 44, they were top 30, they were top 20, they were top 10, they were top 5, but I was number 44, and I carried my certificate with pride and confidence, and I said, if they did it, I am going to do it. Today, those people that were top 5, today, they are not even EGLTs, but I am the EGLT. Keep on keeping on.
तो आप लोगों को एक चीज समझनी है कि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो इतना ब्यूटीफुल है कि आप लोगों को किसी के आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि आज कौन आपसे आगे है, कौन पीछे है, कौन सुपरवाइजर है, कौन एएम है, कौन मैनेजर है, कौन भले सीनियर मैनेजर है। आपको ये नहीं देखना कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि आप अपने जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में एंट्री दी है, उनसे ज्यादा भी बिजनेस कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो। जब मैं टॉप 44 रैंक पे आई थी ना, जो वो प्राइड सर्टिफिकेट मेरे साथ था, मैंने उसके बाद कभी भी ये नहीं देखा कि क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से मैं जेलस नहीं हुई, किसी से मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी मेहनत की। और आज मैं, मतलब जब मैं टॉप 44 आई थी, तब जो लोग टॉप 5 में थे ना, वो आज भी इलाइट जीएलटी नहीं है, लेकिन मैं इलाइट जीएलटी हूं अपनी मेहनत के लिए। तो लोगों को मत देखो, सिर्फ बैंग ऑन अपने काम के ऊपर फोकस करो, आपकी कहानी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। Ladies and gentlemen, success requires consistency. This is our third element of success in forever. Success requires consistency. On the comment section, can I see people that are saying consistency? जो तीसरा पॉइंट है की एलिमेंट सक्सेस का, वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि सक्सेस है उसका सबसे बड़ा राज जो है ना, वो कंसिस्टेंसी है। तो सभी लोग चैट्स में कंसिस्टेंसी टाइप करो अगर आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो तो। So you cannot do your business when you feel like it, unfortunately. Your goals, your dreams, they don't care what you are going through. They don't care what is happening. They don't care if you are sick. They don't care if somebody is at hospital. They don't care if you have a funeral at home. I'm sorry to say that. But your goals and dreams, they don't care about how you feel. If you want to be successful, you can never do the business when you feel like it. You don't attend Success Day because there is an event somewhere. The Success Day that you knew long time ago that you are going there. When you want to be successful in forever, you need to be consistent. So these are some of my meetings that shows you that to be where I am today, it is the result of me being consistent. तो आपको बहुत सारे लोग होते हैं जब वो बिजनेस में काम करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, जब भी काम करते हैं, उनको लगता है कि आप सब कुछ सही जगह काम कर रहे हैं। बट जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके सपने हैं ना, उनको आप क्या फील कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। भले आपकी फैमिली हॉस्पिटल में है, भले आप क्या चैलेंजेस के थ्रू गुजर रहे हो, भले आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आप प्रॉब्लम्स में हो, आप चैलेंजेस में हो, कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, आपके गोल्स को कोई लेना देना नहीं उससे। आपके गोल सिर्फ यही देखते हैं कि आप इस बिजनेस में कंसिस्टेंट हो या नहीं हो। इसीलिए क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, उन चीजों में अटकने से अच्छा आप अपने गोल्स की जो कंसिस्टेंट मूवमेंट है ना, उसके ऊपर काम करो। क्योंकि जब आप वो करोगे ना, तब एक्चुअल में आपको रिवॉर्ड जो आपको जरूर मिलेंगे। आप देख सकते हो जो मैंने फोटो दिखाया, तो बहुत सारे मीटिंग, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन फिर भी वो उस मोमेंट को अब बिजनेस में कंसिस्टेंट गेम खेल रही थी, जिसकी वजह से आज वो इलाइट जीएलटी है। So now, after all my work, after being consistent, that is when now this lady, Ngobile, who is currently number 3 globally, she was a EGLT last year, and she's the one with the husband that got top 2. They got the biggest check. They were number 2 after Rov Keep. So this lady is the one that registered my grandmother in the business. So this one left and that one joined under this one. But this Nobile, she did not join because I looked for her. People were talking about me now in Joburg. She is in Durban, guys. It's another province far from me, 5 to 6 hours from where I stay. I didn't know her that she's my upliner. But with the consistency, people started talking about me that there's a lady who works very hard. And when they were looking who's the upliner, they saw that the first upliner left, the second upliner left, and she is the third upliner. So now she is my mentor. But I found her when I was already a senior manager in the business, when I was already having car incentive, when I was already having everything. So this is to say to you guys, never ever find yourself blaming your upliner for anything.
तो जब आप कंसिस्टेंट मेहनत करते हो तो आपके साथ बहुत सारी चीजें होती है। अब जब मैं कंसिस्टेंट मेहनत कर रही थी, मैं बहुत सारी अचीवमेंट्स कर रही थी, मैं बहुत सारी चीजों को प्लान कर रही थी, तब साउथ अफ्रीका में लोग कहते थे कि एक लेडी है, वो बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, बहुत सारी चीजें बिल्ड कर रही है। तो जब लोग देखते थे कि इसकी अपलाइन कौन है, तो पहली अपलाइन तो गिव अप कर गई थी, सेकंड अपलाइन भी गिव अप कर दिया था, लेकिन जो थर्ड अपलाइन थी ना, वो उस मार्केटिंग प्लान में अभी भी एक्टिव थी। और यही मैम की आज के टाइम पे मेंटोर है। और ये जो मेंटर नहीं, मैम से 6-7 घंटे दूर रहते, उनका कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं था, लेकिन उनको अपने मेंटोर कब मिले, एक्चुअल वर्किंग मेंटोर, जब वो सीनियर मैनेजर थी, तो ऑलरेडी कारपन लेवल कर चुकी थी। तो जब आप कंसिस्टेंट होते हो ना, सारी चीजें आपके लिए अपने आप फिगर आउट होना शुरू हो जाती है। So, you are having mentors already. You have your upliners and also you have Jasper. So, mentors supports growth. Mentors does not sell your stock. Mentors is not obliged to recruit for you. Mentors are there to show you the way. There are some of the things that the mentor will do that says you must do them. So if you're gonna wait for your upliners call all the time, sorry, you're gonna come and blame and say Forever Living is not working. And guys, do you know how many times people came to me to tell me that when I am working very hard, I am working for my mentor? Many times. But what did I do? I closed my ears and I continued working because I knew whatever CCs that I'm putting in, it is for my own kids. If I listened to the people that they were saying, Kuchi, when you are working very hard, you are making Mobile rich. I was not gonna be a diamond manager today. I was not gonna be a 7 है बड़ा अंकल की साल देती ने मैं 10 आंटी होता तो पण इसे फेब्रुवारी तकराम दक्कन घाट पर ली तो पण ये दक्कन घाट पर ना दक्कन खोल दी तो ना figure earner today. तो आप लोगों को यही समझना है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब मेंटर्स की बात आती है, तो मेंटर्स आपको ग्रोथ में सपोर्ट करने के लिए होता है, आपका काम करने के लिए नहीं होता। बहुत सारे लोग नए होंगे, वो सोचते हैं, वो वेट करते हैं कि यार मेरे अपलाइन कॉल करेगी, मेरे अपलाइन ये करेंगे, मेरे अपलाइन वो करेंगे, तब मैं चीजों को फिगर आउट करना शुरू करूंगा, तब मैं चीजों को मैनेज करूंगा। तो ऐसा नहीं है। आपका जो काम है ना, वो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, आप सिर्फ एक ही चीज करोगे, वो है आपके अपलाइन को ब्लेम करना। बहुत सारे लोग मुझे भी मिलते थे डेज में इधर उधर, वो कहते थे कि आप अपने अपलाइन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो क्या? तो मैं कभी भी उसको दिल पे नहीं लेती थी। मैं अपने ब्लाइंड फोल्ड्स लगाती थी और हमेशा ये सोचती थी कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं सीसी पुट करूंगा, जो भी मैं चीजों को फिगर आउट कर रही हूँ ना, वो मेरे बच्चों के लिए है, वो मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे अपलाइन के लिए नहीं है। क्योंकि जो मेरी मेहनत है ना, वो मुझे रिजल्ट देगी, मेरे अपलाइन को नहीं। If you want to be successful in forever, any person that comes to you and wants to be negative, don't entertain them. Any person that even after success day is gonna come to look for something that is negative, that person is a dream stealer. Don't entertain them. Remember why you joined Forever Living. You did not join Forever Living so that you can have friends, but you joined Forever Living so that you can be successful. We find the negative people in our WhatsApp groups. We find the negative people in our success days. You find the negative people on social media speaking bad about their leaders, speaking bad about Forever Living. Do not lose focus. तो आप लोगों को एक चीज समझनी है कि जब आप अपने सक्सेस की ग्रोथ में होंगे या फिर अपने रास्ते पे चल रहे होंगे, आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। तो एक चीज समझ लो, फॉरएवर लिविंग में हम दोस्त बनाने नहीं आए, फॉरएवर लिविंग में हम ग्रो करने आए। फॉरएवर लिविंग हमारी सक्सेस के लिए है, हमारी दोस्ती और रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपको सक्सेस डे में कभी कभार नेगेटिव लोग मिलेंगे, आपको हेलो हेलो। अरे यार बापू ने वहाँ से छोड़वाया तो वो गाड़ी लेने कहीं गयो।